میں شاید اثر فیل کرتا. ہاں بات بالکل آپ محسوس کرتے تھے اس کا. جیسے ہمارا سلسلہ ہے کہ سیرا کے اینگل سے بزنس کے اوپر جو ہم میپنگ کرتے ہیں تو اس میں چند پوائنٹس تھے جو اس واقعے سے متعلق ہیں. یہ پہلے ہیڈنگ ہے نا, اگلا چل رہا ہے ہاں یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی جی. یہ جو مفتی صاحب نے جیسے ایکسپلین کیا تھا کہ منجنیک مل گئی اور اس کو استعمال کر لیا, تو آئی تھنک اس میں انوویشن والا جو اینگل ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جب میں یہ سوچ رہا تھا نا تو مجھے ٹیک ورڈز کا ایک پوائنٹ یاد آ رہا تھا, ہم بالکل صحیح کریں نا کہ سیل اور مارکیٹنگ اینگل سے ایون تو دنیا میں تو وہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے لیے وہ ایک وہ چیز تھی کہ ہمیں اس منجنیک کی ضرورت ہے قلعہ توڑنے کے لیے. تو ایٹ لیسٹ جب میں سوچ رہا تھا تو مجھے لگا کہ ادھر تو فوراً صاحب نے اس کو یوٹیلائز کیا, ہم نے اس دل لگا دی دل لگا دی تھوڑی سی. بٹ آئی تھنک اس سے یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ آپ کی جو پرائر نالج اور پوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو ہر چیلنج میں کام نہیں دیتی, تو نئے سے نئے ٹولس اور اسٹریٹجی کی ایکٹیو سرچ جاری رہنی چاہیے. بہت وہ ود ان ریچ ہوتے بھی ہیں, ایک فون کال کر سکتے ہیں آپ کسی کو پوچھنے کے لیے, مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں, اینڈ سو فورتھ رائٹ. خیر یہ میں اپنے اینگل سے سوچا تھا, لیکن کوئی کچھ بولنا چاہے گا اس پہ؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی سے محاصر کیے بیٹھے رہیں, وہ جو پرانے سسٹم تھے بس انہی پر اکتفا کرتے, تو شاید خیبر کی یہ صورتحال نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا پرانے سسٹم آزمائے, انہی کام کی, تو آپ نے ایک نئی سوچ سوچی, اور پھر اس میں قریب میں چونکہ ایک چیز نظر سے گزری تھی تو آپ نے فوراً سے اس کو آزمایا. ٹھیک ہو گیا نا, اس میں کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا؟ اس کے حساب سے یہ ہے کہ جیسے آج کل ہمارے پاس جو کوڈنگ ایجنٹس آئے ہیں اور یا چیٹ باکس ہے, چیٹ جی پی ٹی والا جیسے, تو وہی بیسکلی جیسے وہ آئے تو کمپنیز ان کو اڈاپٹ کریں گے تاکہ اپنا جو بیس ہے انوویشن ہے اس کو امپروو کر سکے. تو وہی ہے کہ آپ کوئی بھی انوویشن آ رہی ہے تو اس کو چیک کریں نا اور اس کو یوٹیلائز کرتے رہے, ایویلیویٹ کر لیں. اور آئی تھنک اس کے دونوں اینگل ہوتے ہیں. کبھی کبھی کچھ یہ بھی کتابیں لکھی تھیں, کچھ لوگ اوورلی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں اور پرانے ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیزوں کو چھوڑ کے ہر نئی فیٹ کے اوپر, ہر نئے ٹرینڈ کے اوپر جمپ لگاتے ہیں. یہ بھی ایک مطلب دوسری ایکسٹریم ہے, بٹ یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے یار, یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں ٹیکنالوجیاں, ہمارا پرانا طریقے ٹھیک ہے. تو آئی تھنک درمیانی راستہ جو ہے میجرڈ طریقے سے اڈاپٹ کرنا, ٹرائی کرنا, لوگوں سے فیڈ بیک لینا. اور آئی تھنک جیسے ٹیک ورڈ تو چھوٹی سی کمی ہے, لیکن جب اے آئی ٹولس کی ہم بات کرتے ہیں تو یہیں پہ بھی تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے. کچھ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ تھوڑا سا نہیں یوز کر رہے ہوتے. اسی لیے ہم نے ابھی کیا کرنے والے ہیں, یہاں پہ بینر چل رہا ہے, اے آئی ہیکاتھون ہونے والے ٹیک ورڈ میں. اس کا ایک گول یہ ہے کہ ہم سب اس کمپٹیشن میں جا کے ان ٹولس سے زیادہ آشنا ہو جائیں ایک فن انوائرمنٹ میں, کیونکہ ہم بھی محسوس کر رہے تھے کہ ہر بندہ اس کو پوری طرح کیٹاپلٹ یوز نہیں کر رہا جیسے کرنی چاہیے. نبی بھائی ایک اور جو اینگل میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ منجنیک انہوں نے تو دیوار توڑنے کے لیے نہیں بنایا ہوا نا, انہوں نے تو لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے ویسے منجنیک ہو سکتا ہے انہوں نے بھی دیوار توڑنے کے لیے بنایا. جی 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 بالکل, وہ منجنیک تو ہوتی تھی قلعے کی دیواروں توڑنے کے لیے, تو وہ ان کے تو قلعے اپنے تھے, لیکن وہ قلعے کبھی دشمنوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں نا. ہاں, اور ان کے وہ اگر ہمارے ہی قلعوں میں کو ہمارے ہی خلاف استعمال کریں تو ہم اپنی منجنیک سے اپنے قلعوں کو بھی توڑ دیں, کیونکہ ان کے علاوہ تو یہ قلعے کوئی اور استعمال نہیں کرتا تھا. یہ کتنا انٹرسٹنگ تھا کہ جو ہے نا وہ ایک طریقے سے ان کا مال بھی مل گیا, ان کو ریلیز بھی کر کے, اور کل کو وہ وہی خادم بن گئے باغوں کے. اگر بگر پکچر دیکھیں, وہ جو یہودیوں کا مال بھی مل گیا اور یہودیوں کی جان سے بھی فائدہ ہوتا رہا. تو آئی تھنک بزنس کے اینگل سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ بہت دفعہ اگر میں اپنے پرسپیکٹو سے بولوں کہ جب ٹیک ورڈ شروع ہوئی تھی نا, تو کبھی ہم میں جاتے تھے اور بہت سارے پی سی آر کی کمپنیز ہوتی تھی, تو بہت ساری کمپنیز کا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے بات بھی نہیں کرنی, بلکہ ایسی جگہ پہ بھی نہیں جانا جہاں دوسرے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے کچھ ٹریڈ سیکریٹ لے لیں یا کوئی پتہ نہیں کچھ انفارمیشن نکل جائے. لیکن کچھ بڑا انٹرسٹنگ چیز جو ہم لوگ بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ بہت دفعہ جو کمپیٹیٹر ہوتا ہے بظاہر, لیکن اس کے ساتھ بھی کبھی کبھی کچھ ایسی الائنسز بن سکتی ہیں جیسے ون ون. تو ایک بہت اچھی الائنس جو ہم لوگ بھی یوز کرتے ہیں وہ یہ کہ کچھ اسکلز ہمارے پاس نہیں ہیں اور کچھ ہمارے کمپیٹیٹر کمپنیز کے پاس ہیں, اور کچھ ہمارے پاس ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. اب ذرا جب ٹرسٹ بن گیا ہے تو ہم ایک دوسرے کے انجینئرز لے لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں. تو اس طرح ہمارے دونوں کی جو کمبائنڈ
ऑफरिंग है वो बढ़ गई। तो और ये इससे बड़ा फ़ायदा होता है इससे। अब ये टेंशन नहीं है कि यार ये डेटा इंजीनियरिंग की जो स्किल है इसके लिए हायरिंग करके बंदा बैठाओ। हमें पता है नहीं कंपनियाँ उसका CEO बहुत अच्छा इंसान है, धोखा नहीं देता है, दोस्ती है, तो जब भी वो काम आता है हम उससे कह देते हैं यार हम शेयर कर लेते हैं, विन विन करें 50-50। और वो वहीं बैठ के काम करता है, यहाँ आता है? वो वहीं से बैठ के काम कर लेते हैं क्लाइंट के लिए, लेकिन ईमेल एड्रेस हमारा होता है, कॉन्टैक्ट्स हमारे होते हैं, आइडेंटिटी हमारी। अगर उसको टेक वर्ड बहुत पसंद आ जाए, हाँ तो हम ये करते हैं कि हम उसको तोड़ेंगे नहीं, ये आपस में मुआहदा करते हैं कि फिर हम दोनों के जो एम्प्लॉइज़ हैं एक दूसरे के साथ, यानी पोचिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोचिंग वो ना करे, मतलब वो खुद बोले यार मुझे टेक वर्ड का माहौल अच्छा लग रहा है, तो हम फिर भी नहीं लेंगे उसको। अच्छा। हमें ऐसा लगेगा कि यार ये उसकी ट्रस्ट को ब्रीच कर देगा ना। और अगर वो बॉस भी बोलते हैं कि यार खुद ही आना चाह रहा है तो आप ले जाओ। हाँ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखो तो अगर ओनर कह दे कि हाँ चले जाओ तो फिर हमें कोई इतराज़ थोड़ी है। सही, यानी कॉन्ट्रैक्ट में ये सब वाजे ये होता है। सब वाज़ेह होता है। सही। 1 साल की टर्म भी होती है कि जब वो एम्प्लॉय छोड़ेगा तब भी 1 साल तक नहीं आ सकता। अच्छा। क्योंकि वो ये भी तो कर सकते हैं, टेकवर्ड जाना है, टेकवर्ड वालों ने कहा आओ डील बनाते हैं, तुम 2 महीने कहीं से घूम के आ जाओ, चक्कर लगा के आ जाओ, इसलिए 1 साल इज अ सफिशिएंट टाइम, यानी 1 साल तक हम ना वो करेंगे ना वो हमें करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों ने ब्रीच भी किया है तो लेकिन फिर वाजे भी हो जाता है। मतलब कंपनीज एक आध कंपनीज ने किया, वो हमारे कस्टमर्स थे और उन्होंने कुछ करने की कोशिशें की हैं। कभी कभी कुछ एम्प्लॉइज़ को करने की कोशिश की, उन्होंने आगे पहले ही बता दिया कि अटेम्प्ट हो रही है, वो उनकी कोशिश कामयाब हुई या नहीं? नहीं हुई। सही। तो ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन आई थिंक दिस इज डेफिनेटली समथिंग मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन जो मर्जर्स, एक्विजिशन, पार्टनरशिप्स को लेके अपने गोल को आगे बढ़ाने की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। यानी जो गोल अचीव, हर काम बंदा खुद नहीं कर सकता, जैसे वो भी बागवानी नहीं कर सकते। इसमें कोई कुछ कहना चाहेगा? कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं? सिक्योरिटी मर्ज दिए थी इनके साथ, हाँ तो ये ये दोनों को एक दोनों को बेनिफिट मिले। मार्केट यूएस के अंदर तो बहुत होता है। डील का वो डील बेसिकली चाहते हैं हमारे करंट ऑपरेशन जो यहाँ चल रहे हैं कोई स्मूथली चलते रहे। दैट इज अगर दे वांट कि जो भी करंट डील है वो रहे और वो ऑपरेशन रन करते रहे और साथ ही साथ में उनके जो अपने रिटेंशन बोनस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? ये बात हुआ। अच्छा ये बात है, ये उनको देना चाहिए। नहीं ऐसा भी होता है ना, वो चाहते हैं आप रोकें लेकिन वो कुछ दे शुड पुट समथिंग ऑन द टेबल। अच्छा हाँ, और ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आबिल हसन ने आइडेंटिफाई भी किया किसी ने छुपाया हुआ, फिर उसके ऊपर तहकीक भी की और ढूंढ भी लिया और फिर बंदे को उसके कार्य अंजाम तक भी। हाँ, इसकी हिकमत अमली ये थी कि शराइत तय हुई ना तो कोई हमको मामू ना बनाए, मतलब कोई ये ना समझे, माजरत ये सही लफ्ज़ नहीं है, लेकिन कोई ये ना समझे कि इनसे शराइत तय कर लो, इनकी आंखों में धूल झोंक लो, बहुत सादे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अल्लाह वाले हैं, ऐसा नहीं। यानी कोई धोखा नहीं दे सके, हालांकि उस माल की लालच नहीं थी मुसलमानों को और बहुत मिल रहा था, लेकिन अगर आप धोखा दे रहे हो तो आप शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तो फिर हम वो है। अच्छा वो जो हज़रत सफ़िया थी ना, वो कनाना की बीवी थी जिसके पास से, हाँ, और हज़रत सफ़िया के चेहरे पे अल्लाह के नबी ने हरा निशान देखा था, तो बहुत सख्त चोट से होता है। तो हज़रत सफ़िया से बाद में, निकाह के बाद, रुखसती के बाद, तो पूछा भाई ये क्या है जो आमतौर पे ख़वातीन के चेहरों पे कम अज़ कम इतने का निशानी हो तो सख्त चोट का होता है? बोला मैंने कुछ अरसे पहले जब आप यहाँ आ रहे थे, उससे मैंने चंद दिन पहले ख्वाब देखा था कि जो ना वो एक आसमान के एक चाँद उतरता है और ऊपर से गिरकर मेरी झोली में आ जाता है। तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं, आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, मैंने कनाना को सुनाया था, तो उसने मुझे बहुत ज़ोर की जो है ना वो यानी थप्पड़ मारा था, वो कहा था तो तू मदीने के बादशाह का ख्वाब देखती है। इंटरप्रेट भी कर लिया था। हाँ, तो समझदार आदमी था। और ये भी तो हज़रत सफ़िया फरमाती है ना कि जब मैं तो मेरे वालिद बात किया करते थे चचा के साथ, जी 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 इन्हीं जी का वाक़या जी था। जी, नहीं का वाक़या और वो सच्चा रसूल होने की उनको मालूम था, लेकिन बुआ हमने बहुत छोट किया आगे के बहुत वाक़यात छोटी को। थी। हाँ, सही, ठीक हो गया। तला ज़ुबैर का जो वाटर वो कंपैरेटिव इंटेलिजेंस, वैसे इंटेलिजेंस का कामन में बहुत आ रहा है यार, इस पर हमें भी कुछ मेहनत करनी चाहिए ना सीरत में, ये इंटेलिजेंस को पता करना कि कहाँ से, ये तो हर जंग की एंगल से, लेकिन वो बिजनेस एंगल सुन नहीं चलना चाहिए। सुन नहीं चलना चाहिए। सुनना क्योंकि चाहिए। इस पे एक फाइन लाइन होगी इंटेलिजेंस में, क्योंकि अभी आप लोग पता नहीं फॉलो कर रहे हैं यूएस में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा, बट रिपलिंग ये
एस्पियोनेज थ्रू प्लांटिंग एम्प्लॉयज़ बहुत चल रहा है। 2 केसेस हुए हैं अभी रिसेंटली कि जो है एम्प्लॉय बना के आपने हायर करवा दिया कंपनी में और वो एजेंट है और वो सारे के सारी कंपेटिटिव इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन द कंपनी दे रहा है। आइडिया अच्छा है। यहाँ तो अभी कानून नहीं है ना ये, अगर कानून नहीं है तो बिजनेस स्ट्रेटेजी होगी ना ये। तो ये मुझे तो लगता है ये थोड़ा सा गैर शरई लग रहा था। अच्छा, एथिक्स और मॉरल के खिलाफ लग रहे हैं। सही है। इसमें कोई कुछ कहना चाहेगा? वैसे हम अपने अपने डे टू डे में कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? एक तो न्यूज़ कंज्यूम लाइफ लाइन उन्होंने काटी थी ना, मतलब हम अपने कॉम्पिटिटर की लाइफ लाइन तो नहीं काटेंगे ना। हाँ, आई गेस ये हो सकता है मे बी कि कुछ एम्प्लॉय जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो जैसे हम एक पढ़ भी रहे हैं कि बहुत दफ़ा जब हम कहीं जाते हैं तो कुछ जगह पे वहाँ के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ थ्रेटेंड भी फील करते हैं। यानी यार टेकवर्ड्स के लोग आ गए हैं, मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो चाहती है कि मिलके काम हो, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ कहते हैं यार हम पहले जैसे ढीले चल रहे थे तो अब हमें ना कुछ ऐसी काम करने के यहाँ से चले जाएं। तो आई थिंक उसमें इसके बरक्स तो कोई कहीं महसूस नहीं होता है। क्या वो इसके बरक्स तो कहीं महसूस नहीं होता है। कि क्या पूछ रहा हूँ मैं आपसे, इसके बरक्स तो नहीं होता। कहीं कोई फीडबैक तो नहीं मिला ना आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो होता है इसमें आई थिंक ज़रा होशियारी ये चाहिए होती है कि वहाँ पर जो बातें हो रही हैं, कोई शिकायत लगा रहा है, कुछ यानी ऐसी चीज़ें मुझ तक पहुँच जाती हैं कि फिर पता चलता है कि उन्हीं के किसी एम्प्लॉई ने कोई ऐसी बात की, फॉर एग्जाम्पल कि पहले आपको कुछ ऐसा बोल देगा, आपको गुस्सा है, फिर आप कुछ जवाबी कार्रवाई कर दो तो जाके बता दो ये तो ऐसी बातें करते हैं। मतलब हमारे अल्लाह का शुक्र है पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये जो ऐसी चीज़ होती है उसमें एक थोड़े से केसेस हैं जिसमें आई थिंक अगर हमारे वाले थोड़े होशियार होते तो पकड़ लेते। ये जो हो रहा है वो उनको एक्चुअली में साइड लाइन करने के लिए एक ग्रुप बन रही है, बट आई थिंक इससे ज़्यादा बहुत मुझे नहीं समझ आया, लेकिन एनीवेज और इस पर तो आपने बात कर ली थी कि पीपल ओवर हज़रत जाफर की शख्सियत के ऊपर। ये जो कॉन्सेप्ट है ना पीपल ओवर प्रॉफिट, पीपल ओवर एवरीथिंग, इवन द प्रोडक्ट दैट यू बिल्ड, आई थिंक ये बहुत अहम है। वो जो किताब भी गुड टू ग्रेट, उसकी रिसेंटली टॉक भी हुई थी गिग्स ऑफ कराची में, उसमें भी था कि फर्स्ट टू देन व्हाट। खैर उसका एंगल कुछ और था, लेकिन उसमें भी एक बात ये बहुत गहराई से थी कि ग्रेट कंपनीज के अंदर जो चीज़ उनको ग्रेट बनाती है उसके लोग होते हैं, उसके लीडर होते हैं, तो लिहाजा और वो कभी बाहर से नहीं होता, वो अंदर ही से ग्रो किए जाते हैं। जो 400 कंपनियों पर रिसर्च थी, कितनी पर 11 केस स्टडीज थी उसमें, लेकिन रिसर्च तो बहुत सारी कंपनियों के ऊपर को शामिल किया गया था। तो आई थिंक ये कंपनी के एतबार से तो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है बात कि हमें बहुत दफ़ा जैसे सिक्योरिटी की एक्विजिशन हुई, एक है कि आप एक्विजिशन को सेलिब्रेट करें और एक है कि जिन लोगों ने उसको किया आप उनकी हौसला अफजाई करेंगे। ये वो लोग थे जिन्होंने मसला हल किया। एक्विजिशन जितनी की भी होनी थी, लेकिन बहरहाल इनका काम, इनकी मेहनत, इनकी एफर्ट है, और आई थिंक उसमें फिर सबको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, यू नो। तो एनीवेज तो जितने कंधों पे पैर रख के हम पहुँचे हों जी तो एक यानी ईमान इंसान से तकाजा करता है कि वो एहसान फरामोश ना हो, यानी कतई नज़र बिज़नेस के हम उन लोगों को याद रखें कि जिन्होंने यहाँ तक हमको पहुँचाया किसी भी लेवल पर। बिल्कुल। इसमें अगर आप कुछ कहेंगे अच्छा ठीक है, थैंक यू। कोई और कुछ कहना चाहेगा? पीपल ओवर और ये जो गोश्त वाला वाक़या था इसके ऊपर यानी जो पूरा वाक़या हो गया था, तो यहूदिया औरत ने मुसलमानों की फ़तह को यूटिलाइज़ किया था कि यार ये तो मुसलमानों फ़तह हो गए तो मुसलमान ना, मतलब जो तने हुए थे मुसलमान अब वो स्ट्रेस से कम में होंगे तो ये निकल जाएगी चीज़, और वाकई में निकल गई थी। किसी ने देखें किसी से ने कि यार यहूदिया औरत गोश्त भेज रही है किसी साहबी को, आपकी सिक्योरिटी पर तो थे ना लोग, ख्याल करते थे, किसी को ये आइडिया नहीं आया कि कहीं ऐसा ना हो कि इसने जहर मिलाया हो। तो अल्लाह के नबी को तो गैब से पता चला। आपने कहा ना अल्लाह ने आपको बताया कि यार ये हड्डी मुझे बता रही है कि इसमें जहर है, मुझे नहीं खाओ, अल्लाह के नबी मुझ में जहर है ना। तो वो उसने देखें इस जगह को ख़ास, इस पॉइंट को उसने ना उसने समझा कि मुसलमान गफलत में होंगे। बिल्कुल सही। तो उस मोमेंट्स के अंदर भी ड्यू डिलिजेंस वाला एंगल कवर करना चाहिए। सही है। तो जज़ाकल्लाह खैर, सुभान अल्लाह।